The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Menteri Rangba ka jela ukan rat ke sangma, buat Menteri Rangba ka Maharashtra, Devendra Fadnavis, haka Pratrik Nailar ahaja pun riu, kilabu maunong rim, bantai ya ka Meghalaya House ka Pathamai, haka shnong Karghar Navi Mumbai. Labu yung maunong rim hadian bela IT ya ka Jaka, dak City and Industrial Developments Corporation, jong ka Sarkar Maharashtra. Kajing snai ka Meghalaya House ka Pathamai, kalong man pensuk, ikinong shnong jong ka jela Meghalaya. Haka bakilit siya Mumbai, nakamanta kajing siya asumar, kijing puli, kikam sarkar bat kiwi kijing tumu. Kami Meghalaya kawadan menta hawashi, belasna usnam arajar pra, kadon tangkat ar kamra, bat kakapnya abha. Namar baka jingbuan kinong pang na Meghalaya, kibaliwa jing sumar ha Tata Memorial Hospital. Kat baka jaka bansnay ka Meghalaya Bathamai, hakarghar kahe arajar, hinyobuway pon riu square meters, bala kamilinti pakan ay kajing syakri kapapaka yikipat आहे. मेघालय भवनासाठी सिडकोच्या माध्यमातून भूखंड देण्यात येत आहे. हे केवळ भूखंडाचं हस्तांतरण नसून दोन्ही राज्यांमधील सहकार्य, समन्वय आणि मैत्री अधिक दृढ करणारं नागरिकांसाठी एक सोयीचं आणि आपुलकीचं केंद्र म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल हे निश्चित. Just a few seconds back, we have seen the virtual unveiling of the foundation of the new Meghalaya House. From a need that was felt, to a request that was pursued, to land that has now been secured, today is a foundation upon which a new Meghalaya House will rise. Let's give a warm and a big applause, please, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to thank our respected Honorable Chief Minister of Maharashtra, the entire cabinet, and all the officials for having made this day a possibility. For us as a state of Meghalaya, today almost feels like a dream for us.
we are very much aware about the constraint of land, the constraint of space, especially in a very important and prime location like this. But yet, Honorable Chief Minister, Shri Fadnavis ji, and all the officials, especially of CIDCO, and our local MLA, have made this dream of ours come true. मैं मेघालय के सभी वासियों की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स और सभी ऑफिशियल्स का मैं पूरे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का ये दिन और ये प्रोजेक्ट आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सिडको के पूरे टीम की वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, इन पिछले 12 सालों में उन्होंने हर दम, हर प्रोग्राम, हर मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट को आगे रखकर उन्होंने काम किया है। और वो हर समय कहते थे और आज भी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए सबसे दूर नहीं, लेकिन सबसे पहला एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। हम सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन और जगह होना चाहिए। और भारत सरकार की तरफ से और अलग अलग स्टेटों की तरफ से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम साथ में काम करें, नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट के हमारे लोगों को साथ जोड़कर हमें इस देश को आगे ले जाना है। और आज इस सोच से प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग डेवलपमेंट का काम और अलग अलग पॉलिसीज आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज आपने सुना होगा हमारे चीफ सेक्रेटरी ने अपने स्पीच में कहा कि मेघालय पूरे देश में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है और उसमें आसाम है, यानी कि टॉप 5 में नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं। और इसका पूरा क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और आज जो यहां हो रहा है, ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसी सोच को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज वो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पास्ट हिस्ट्री में, मुझे तो याद नहीं है लेकिन शायद हो सकता है कि ऐसे प्रोग्राम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद ही आकर इस प्रोग्राम में जो डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर्स और जो फाउंडेशन ले करना है, उसका काम उन्होंने खुद अपने हाथ में लेके उन्होंने किया। जमीन देना एक इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए खुद एक छोटे से प्रोग्राम में आकर भाग लेना और डॉक्यूमेंट्स खुद अपने हाथ से देना और फाउंडेशन स्टोन के प्रोग्राम में खुद साथ में रहना,
ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज है। ये हमारे देश के इंटीग्रेशन के लिए, कि हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट सब एक साथ मिलके हम लोग काम करें। और यही मैसेज आज हमारे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी आप सबको, मेघालय के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग भी हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट और मेघालय के साथ हैं। और यही सबसे बड़ा मैसेज है आज इस प्रोग्राम का। मुझे याद है नीति आयोग के मीटिंग में, क्योंकि महाराष्ट्र MA है और मेघालय ME है, तो फडणवीस जी और मैं ज्यादातर हम लोग साथ ही बैठते हैं। तो जब हम बैठते हैं तब हमारी ये छोटी छोटी बातें हमारी होती हैं अपने अपने स्टेट्स के बारे में। और मुझे याद है उस मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री साहब से कहा कि हमें इस जमीन की बहुत जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले हमें एक जमीन हमको मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि हमारे इतनी संख्या में हमारे पेशेंट्स आज मुंबई आते हैं, हमारे इतने स्टूडेंट्स जो आज यहां मुंबई में पढ़ते हैं, आज बिजनेस की वजह से, म्यूजिक इंडस्ट्री की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से और अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की वजह से हमारे बहुत सारे युवा आज मुंबई और महाराष्ट्र आ रहे हैं। अगर आप हमारे मेघालय हाउस 1 में जाएंगे तो आज छत में भी वहां जगह नहीं है रहने के लिए। और बहुत समय ऐसे आते हैं जब हम लोगों को जगह नहीं दे पाते। और इसी बात को आगे रखकर मैंने मुख्यमंत्री साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया और 10 सेकंड के अंदर उसी मीटिंग में बिना झिझके 2 सेकंड में उन्होंने हां किया। और उसकी वजह से आज ये जमीन और ये प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ है। और अभी अभी मिलिंद देवरा जी ने मुझे याद दिलाया कि मेघालय ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है और मैं जहाँ पर चुनकर आता हूँ नागपुर, वो महाराष्ट्र का नॉर्थ ईस्ट एरिया है। तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जो प्रेम है, शायद मेरा प्रेम इसी कारण से थोड़ा ज़्यादा है। और वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले हैं, इनके जो फेवरेट डेस्टिनेशंस है, इसमें अगर हम देखें तो दिल्ली तो है ही, वेस्ट बंगाल भी है क्योंकि वो करीब है, लेकिन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन ये मुंबई और पुणे, ये जो हमारी 2 शहर है, ये 2 शहर है। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हमारे बहनों भाइयों को जब यहाँ पर स्टूडेंट्स के रूप में या अलग अलग प्रोफेशन में देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत की एकात्मिकता का जो हमारा एक सपना है, उसको हम लोग एक प्रकार से पूरा होता देखते हैं। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूँ कि मेघालय एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का राज्य है। और विशेष रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज तो इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इस रूप में जानते थे और कहते थे कि अगर कोई स्कॉटलैंड नहीं जा पाया तो मेघालय चला जाए, तो उतनी ही सुंदरता ये मेघालय में दिखाई पड़ती है। और विशेष रूप से
वहाँ का जो हमारा कल्चर है, हमारे खासीज, गारोज, जो हमारे ट्राइब्स है, इनका जो कल्चर है, और इस कल्चर में विशेष रूप से जिसका उल्लेख हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, म्यूज़िक, ये वहाँ की आत्मा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी खुद एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट है, म्यूज़िक में बहुत रुचि रखते हैं, खेलों में भी रुचि रखते हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। तो एक प्रकार से जो हमारे यूथ के साथ उनका कनेक्ट है वो इन सारी चीज़ों से है। और रॉक म्यूज़िक का भी एक कैपिटल इस रूप से हम लोग मेघालय को देखते हैं। और उसी के कारण जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुंबई का और मेघालय का एक कनेक्ट ये भी है कि मुंबई ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की जगह है। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री का आत्मा है। और अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और ऑफ कोर्स हेल्थ केयर, बड़े पैमाने पर म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करने वाले या जिनके आत्मा में म्यूज़िक बसता है, ऐसे हमारे मेघालय के भाई बहन ये भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत गहरा रिश्ता ये हम लोगों का है। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बताया कि महाराष्ट्र एंड मेघालय में बी माइल्स अपार्ट, but in every meeting of our honorable prime minister we sit together and we discuss about Maharashtra and Meghalaya, about our cultures, about our politics, about our societies. और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, जिसके तहत एक पेयर्ड स्टेट, एक सहोदर राज्य इस रूप में आज महाराष्ट्र और मेघालय हम लोग साथ में हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उसमें वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड। और एक बहुत ही सुंदर मेघालय भवन का निर्माण आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जिस समय मुझसे ये बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो हमारी मुंबई है ये एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स है। हम लोग भारत के सभी कल्चर्स को, सभी प्रकार की संस्कृतियों को मुंबई में देखते हैं। और हमको इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोगों का जो कल्चर शेपअप हुआ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने एक व्यापकता हमको दी, जिन्होंने एक बड़ी सोच हमको दी, और जिन्होंने हमको ये बताया कि वी हैव टू बी ऑल इंक्लूसिव। हम लोगों को जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, जब तक समूचा भारत ये साथ में मिलकर अपने वजूद को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक हम लोग स्वराज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। और महाराष्ट्र ने तो हमेशा इस चीज़ को माना है और बहुत ओपन आर्म्स के साथ सभी को स्वीकारा है। और हमारे देश में हर राज्य में महाराष्ट्र से जाने वाले लोग बसते हैं, और वो सब जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसके साथ घुल मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने यहाँ पर ये मेघालय भवन बनाने का निर्णय लिया। चूँकि पहला भवन छोटा भी पड़ता था, अब ज़रूरतें भी बढ़ी है, इसलिए एक बहुत अच्छा एक भव्य भवन बने। और मेघालय से आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेघालय से आने वाले हमारे आर्टिस्ट हैं, हेल्थ केयर के लिए यहाँ पर आने वाले हमारे पेशेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन सभी को एक उनके हक की जगह यहाँ पर प्राप्त हो। इस प्रकार का जो आपकी ये जो सोच है उसका हम स्वागत करते हैं। और इसीलिए हमने तय किया कि इस प्रकार की भूमि आपको अवेलेबल करके दी जाए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि
जिस जगह पर ये भूमि आपको हमने दी है, ये केवल महाराष्ट्र है, मुंबई का नहीं, ये देश का फ्यूचर है। क्योंकि देश की आने वाली अर्थव्यवस्था ये इसी सारे इलाके में शेपअप होने वाली है। हमारा थाना जिला, हमारा रायगढ़ जिला, हमारी नवी मुंबई कॉरपोरेशन, हमारी पनवेल कॉरपोरेशन, सिडको का हमारा नैना का एरिया, हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये सारा इलाका ऐसा है कि द नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस एरिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवल नवी मुंबई एयरपोर्ट नहीं, तो हमारी आने वाली एजुसिटी, जिस एजुसिटी में वर्ल्ड की, दुनिया की टॉप रैंकिंग 12 यूनिवर्सिटीज़ हमारी एजुसिटी में आ रही है, और मेडिसिटी, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मेडिकल स्कूल और उसकी इकोसिस्टम, ये हमारी मेडिसिटी में आ रही है। तो दुनिया की जो सारी तमाम एजुकेशन और हेल्थ केयर की और इनोवेशन की इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम इसी इलाके में हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी इसी क्षेत्र में आ रहा है। हमारी जो न्यू एज इंडस्ट्री है, फिर अगर हम लोग विचार करें तो हम लोग आज डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में हैं। आज देश का डेटा सेंटर कैपिटल भी यही है। 60% ऑफ इंडियाज डेटा सेंटर कैपेसिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन दिस एरिया। और जो न्यू एज इंडस्ट्री है, जो कटिंग एज इंडस्ट्री है, स्पेशली हम जिसको डीप टेक कहते हैं, जिसको हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ये सारी चीज़ों का भी इलाका यही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो भी यहीं से आने वाला है। और एक जो न्यू एज अर्बनाइजेशन है, जो बहुत ही प्लान्ड है, जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, और जो एक प्रकार से हमारी ग्रोथ को ड्राइव करता है, वो भी इसी इलाके में आने वाला है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जिस समय हमारे मेघालय के लोग इस भवन को देखेंगे, उस समय दे विल थैंक यू अप टू इटर्निटी। इस प्रकार की ये जगह यहाँ पर है। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूँ, इट इज़ अप टू यू, बट अगर आपको यहाँ पर जो भी भवन बनाना है और आपको अगर ठीक लगता है, तो हमारे सिडको की ओर से हम लोग, यू कैन अपॉइंट अस एज एजेंसी। मैं आपको यहाँ पर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लीस्ट कॉस्ट में और बेस्ट क्वालिटी, इस प्रकार से हम लोग एकदम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हम इसको आपको बना कर देंगे। और बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर इसका हम लोग तैयार करेंगे। आप ही उसको, यू विल अप्रूव, आप ही तैयार करके जो देंगे उसको यथार्थ में लाने का काम ये निश्चित रूप से सिडको के माध्यम से हम लोग करेंगे, ताकि कम से कम समय में इसका उद्घाटन भी हो और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, विशेष रूप से मेघालय के लोग हैं, उनको इसका उपयोग भी वो लोग सब मिलकर कर पाए। Kanongba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena ka ta ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan
bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat batho du wai ka don ha Meghalaya henry ka bernihat batho du yupat ka don ha Assam ka we ka nongba henry lapia aliang du put Assam chungki jilla house name hajar prasau ka kai phot ka perthei ka lapinmi ka kerteng ka bernihat ha kamat henry ka khubo ka jingsha bonsin laklet bat omshim lala ban pin pau nama ime de la slam de la don hi jaga sanpho kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himdi ban ong ba kal air ka wan be tang na Assam ne tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala banta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.2 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat balai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la kapor ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka border Assam kajing per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim la balen re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bokla tho menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo Assam henry ban ong ba bernihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye kibreo